فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین ان ھذا لہو القصص الحق۔ محترم ناظرین و ناظرات، آپ تمام حضرات و خواتین کی خدمت میں عید مباہلہ کے موقع پر آپ کا میزبان سخاوت حسین صدرالوی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور عید مبارک کی سعادت حاصل کرتا ہے۔ آج کا ہمارا پروگرام المہدی ٹی وی سے بند کر مباہلہ کے بارے میں ہے، اور عید مباہلہ 24 ذی الحج کو ہے، ہجرت کے 7ویں سال میں 24 ذی الحج کے روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی و بطول حسنین شریفین علیہم السلام اجمعین کو ہمراہ لے کر نصارے نجران کے مقابل پہ گئے، ان سے مباہلہ طے پایا، اور نصارے نجران نے وڈرا کر لیا، گیو اپ کر لیا، اور اہل بیت کے مقابل پر مباہلہ کرنے سے پہلو تہی کی۔ اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ کرز ابن علقمہ، ابو حارثہ وغیرہ پر مشتمل نجران کی بستی کے کرسچنز کا ایک ڈیلیگیشن خچروں پہ سوار ہو کر مدینۃ الرسول آیا، اور آ کر کہا مسلمانوں سے کہ ہم آپ کے رسول کو ملنا چاہتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کے ایک گروہ سے ان کی ملاقات ہوئی۔ وہ گروہ اصحاب کا نصارے نجران کے ڈیلیگیشن کو حضور کی خدمت میں لے آیا۔ حضور نے ملنے سے انکار فرما دیا۔ اگلے روز اس ڈیلیگیٹ نے مولا علی علیہ السلام سے رابطہ کیا۔ مولا علی نے کہا میں تمہیں حضور سے ملواتا ہوں، بشرطے کہ تم حریر اور ریشم کے لباس اتار کے سمپل لباس پہن کے آؤ، کاٹن وغیرہ کے، سلک کو اتار دو جو مردوں کے لیے اسلام میں حرام ہے، اور سونے کی جو انگوٹھیاں پہن رکھی ہیں انہیں بھی اتار دو۔ ہمارے ہاں ہمارے بہت سارے مسلمان مرد فیشن کے طور پر سونے کی انگوٹھیاں بھی پہنتے ہیں اور پیور سلک بھی پہنتے ہیں، جو کہ شریعت محمدی میں حرام ہے۔ اب حضور ملے، حضور سے ڈائلاگ ہوئے، قرآن نے اس کو کوٹ کیا ہے سورہ آل عمران میں 60، 61 اور 62 میں، ان مثل عیسیٰ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال کتاب الہی میں آدم کی طرح ہے، خلقہ من تراب، دونوں تراب سے پیدا ہوئے۔ تو حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم عیسیٰ کو خدا مانتے ہو تو پھر تراب سے پیدا ہونے والے پہلے نبی آدم کو کیوں نہیں خدا مانتے؟ یہ ڈائلاگ تھے، انہوں نے تسلیم نہ کیا۔ جب نہ کیا تو قرآن نے آواز دی، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین ان ھذا لہو القصص الحق۔ کہ اگر یہ
मुहाज्जा करते हैं आपसे बाद इल्म व यकीन के, बात आपकी नहीं मान रहे मेरे हबीब, तो इनसे कहिए आओ हम अपने बेटे लाते हैं, तुम अपने बेटे लाओ, हम अपनी औरतें लाते हैं, तुम अपनी औरतें लाओ, हम अपने नफ्स लाते हैं, तुम अपने नफ्स लाओ। फिर हम मुबाला करेंगे और झूठों पर अल्लाह की लानत करेंगे। ये किस्सा हक के किस्सों में से एक है। आप अगर कॉल करना चाहें तो हमारा नंबर नोट कर लें, इस नंबर पे कॉल करें 718, नीचे टाइप भी कर देते हैं कॉल के लिए 718-675-6987। नाज़रीन नाज़रात, अगर आप हमारा प्रोग्राम वॉच कर रहे हैं तो प्लीज हमें कॉल करने के लिए नंबर नोट किया जा रहा है स्क्रीन पे 718-675-6987। मुबाहला के बारे में आज हमारा सिरात मुस्तकीम का 35वां प्रोग्राम हो रहा है और आपसे हम गुजारिश करते हैं मुबाहला के बारे में कोई सवाल करना चाहें, कमेंट्स भेजना चाहें तो हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जब तक कॉल नहीं आती मैं बैकग्राउंड बयान कर रहा हूं। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली व बतूल हसनैन शरीफैन को लेकर मैदान मुबाहला में चले। जाने की तरतीब कुछ यूं थी, नबी आगे थे, दाईं उंगली के साथ हसन को पकड़ा हुआ था, सीने पे हुसैन को उठाया हुआ था। हुजूर के पीछे बतूल थी, बतूल के पीछे अली थे। दूसरे लफ्जों में इस्मत हिसार रिसालत व इमामत में जा रही थी। बीबी फातिमा कदर मुश्तरक बन के जा रही थी। रिसालत व इमामत में कदर मुश्तरक का नाम है इस्मत, इनफैलिबिलिटी। एक कॉल ले लेता हूं, फिर इंशाअल्लाह सिरात मुस्तकीम का 35वां प्रोग्राम जो मुबाहला के बारे में है जारी रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, who's this? How many people are from the Christian? Very good. Thank you. Thank you very much. Please keep watching. I'll answer right away. Noor is calling and asking, 5 people were from the side of Prophet. How many people were from the side of Christians? 3 people came to discuss and have dialogue with Prophet in Medina, and when they came with a group for mubahala, they were more than 10 people, but 3 people got dialogue with Prophet in Medina. Thank you very much. नूर ने हमें कॉल की है और पूछा है कि हुजूर के साथ डायलॉग करने वाले कितने लोग थे। उनको बता दिया गया कि 3 लोगों ने हुजूर के साथ डायलॉग किए, जिनमें अबू हारसा कुर्ज इब्न अलकमा शामिल थे, और 5 लोग टोटल थे जो नसारे नैरान के मुकाबिल पर निकले थे। मोहतरम नाज़रीन नाज़रात, आप वाच कर रहे हैं अलमादी टीवी का प्रोग्राम सिरात मुस्तकीम नंबर 35। सिरात मुस्तकीम बेसिकली ओकेजनल प्रोग्राम है जिसमें हम डे टू डे जो ओकेजन्स आते हैं उन पर गुफ्तगू करते हैं। सिरात मुस्तकीम का 36वां प्रोग्राम इंशाअल्लाह मंडे के दिन आएगा, बल्कि वही जो हम सालाना करते हैं प्रोग्राम सफीर करबला का, वो सफीर करबला के उन्वान से होगा। उसमें हम मुहर्रम के आदाब भी बयान करेंगे, मुहर्रम की मालूमात देंगे, शुहदाए करबला के बारे में गुफ्तगू करेंगे और कातलान हुसैन के मजहब के बारे में, उनकी फिगर के बारे में, कितने कत्ल हुए वगैरह, जैसे आज हमने हौज़ की क्लास में भी गुजारिशात की हैं। तो इंशाल्लाह मंडे के दिन प्रोग्राम करके हम, क्योंकि यूके चले जाएंगे, लिहाजा आप मंडे के दिन याद से नोट कर लीजिए। इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को हम आफ्टरनून करेंगे। एक कॉल और ले लेता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम सलाम। मोहम्मद इकबाल जी, कैसे हैं सर? ठीक है। मौलाना साहब, मेरा एक सवाल
बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अभी अर्ज करता हूं जवाब। बहुत मेहरबानी मोहम्मद इकबाल साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत खूबसूरत सवाल है। मोहम्मद इकबाल साहब ने हमें टेक्सास से कॉल की है, हमारे परमानेंट कॉलर हैं। हम माजरत भी चाहते हैं, एक कॉल और ले लेते हैं, फिर मैं मोहम्मद इकबाल साहब का जवाब अर्ज करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सर। जनाब, ये ईद मुबारक के मुतालिक पूछना था कि ईद मुबारक क्या चीज है जी, इसके जरा हमें कोई रोशनी बता देंगी। बहुत शुक्रिया, अभी अर्ज करते हैं सर। सबसे पहले तो मोहम्मद इकबाल साहब के जो सवाल का जवाब अर्ज करना है वो ये है कि जब मुबाहला करार पाया तो 24 ज़िलहज को मुबाहला करार पाया। आज भी वो जगह मौजूद है, उस जगह आजकल मस्जिदुल इजाबा है, जहां दुआ कबूल हुई, इजाबा कबूलियत से, जहां जवाब आया। जब हुजूर अपने खानदान के 4 अफराद को लेकर मुकाबिल पे गए तो उधर से जो चीफ प्रीस्ट था वो पुकार उठा, उसे कहा वल्लाहि इन्नी ला अरा वुजूहन लौ सअलल्लाहु अन युज़ील जबलन ला अज़ालहुल्लाह। ऐ नसारे नजरान, इन हस्तियों से मुनाजरा न करना, मुबाहला न करना। मैं इनमें ऐसे चेहरे देख रहा हूं कि अगर अल्लाह से कह दे पहाड़ हटा दो तो अल्लाह इनका कहा नहीं टालेगा। तो मोहम्मद इकबाल साहब का जवाब यह आ गया कि वो नसारे नजरान आजकल के सो काल नजदी तकफीरी मुसलमानों से 1000 दर्जा बेहतर थे, कि जो इन सच्चों के मुकाबिल पर झूठा कहलाना पसंद नहीं कर रहे थे, और वो इसमत के कायल थे, इनके मोजज़ात के कायल थे। अगरचे वो कन्वर्ट ऑफिशियली नहीं भी हुए, मगर उन्होंने अजमत अहले बैत को सलाम सैल्यूट जरूर किया। जहां तक दूसरे भाई का ताल्लुक है, उन्होंने कहा ईद मुबाहला के बारे में बताएं। ईद मुबाहला सच्चों की ईद है। फुम्मा नब्तहिल फनजल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। मुबाहला करेंगे और अल्लाह की लानत होगी झूठों पर। आज मुबाहला के दिन सच्चों और झूठों का फैसला हो गया। जो पैतल पाक के मुकाबिल पे आता है वो झूठा होता है, वो लानत का मुस्तहिक होता है। अगर आप कॉल करना चाहें, हमारी लाइंस ओपन है। सिरात मुस्तकीम के 35वें प्रोग्राम में जो मुबाहला के बारे में हो रहा है, ये मुबाहला नहीं मुबाहला है, हा पर जबर है। आप भी कॉल कर सकते हैं 718-675-6987 पे। मोहतरम नाज़रीन नाज़रात, आज हम आपकी खिदमत में अलैकुम सलाम मुबाहला की ईद के बारे में लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं, जो सच्चों की ईद है, जिसमें नसारे नजरान ने अहले बैत से मुबाहला करने से इनकार कर दिया। और हुजूर ने इरशाद भी फरमाया वल्लाहि लौ तबाहलू लमुसिखू क़िरदतन व खनाज़ीर। खुदा की कसम, अगर नसारे नजरान मुबाहला कर लेते तो अल्लाह ताला इनको इंसानियत से डिग्रेड करके खिंजीर और बंदा बना देता। कोई एक बात है तो और तय हो गई, जो भी इन हस्तियों के मुकाबिल पे आ जाए, या वो खिंजीर होता है या बंदर होता है। तो ये बहुत बड़ी ईद है, सच्चों की ईद है। मैंने कल अल कुरान सेंटर अपर डार्बी पेंसिल्वेनिया में खुतबा जुमा में अर्ज किया कि हमें चाहिए कि सच्चों की ईद के मौके पर सच को प्रमोट करें और झूठ से बचें। बहुत सारे लोग सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं, रात को सच्चों का जश्न मनाते हैं। हमें किरदार और अमल में मुबाहला के फातेह पंजतन पाक के रास्ते पर चलना है। हमारी जिंदगी में ईद मुबाहला के मौका पर हम कसम खा लें कि अब उम्र भर झूठ नहीं बोलेंगे और सच के साथ तमस्सुक रखेंगे। यह है दरअसल ईद, सच्चों की ईद यह है। यही वजह है कि इस मौके पर रोजा भी कल का मुस्तहब है, और कल 2 रकात नमाज है, जोहर से पहले या जोहर के बाद, बिल्कुल गदीर वाली। उसमें आप सूरतुल फातिहा 1 मरतबा, सूरतुल इखलास 10 मरतबा,
सूरतुल क़द्र 10 मरतबा, आयतुल कुर्सी 10 मरतबा। और इन 2 रकत का सवाब इक्वल है 1,00,000 हज मकबूला, 1,00,000 उम्र मकबूला। लिहाजा ये 2 अमल कल ना भूलें। अगर आप हमें कॉल करना चाहें 718-675-69। हेलो हेलो, कॉल भी कर सकते हैं 718-675-6987 पे। एक कॉल ले लेते हैं, इसके बाद इंशाल्लाह ये प्रोग्राम जारी रहेगा। आज हम मुबाहला के बारे में आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत ईद मुबाहला मुबारक हो। पंजतर पाक के सदके में अल्लाह आपके घरों को आबाद और शाद रखे, जहां जहां आप रह रहे हैं। आज शब कल का दिन जो मुबाहला की शब दिन है, शब रोज है, ईद मनाइए, सच्चों के साथ इजहार यकजहती वाबस्तगी कीजिए और अपनी जिंदगी में सच को शामिल कीजिए। झूठों से दूर रहिए, फराडियों से दूर रहिए। एक कॉल ले लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में मुबारक का प्रोग्राम जारी रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। If the ayat says we shall do lana on the liars, if the lana succeeded, would every liar at that time have been cursed by Allah? Yes, very good. Thank you. Is this Misam? Yes. Okay, Misam is asking a question that when Quran says we will do curse of Allah upon liars, so is this curse continuing today? The answer is yes. Ala la'natullahi alal kadhibin. Curse of Allah be upon liars. So we are supposed to not become out of liars. Otherwise, curse of Allah will be upon us. So become from truthful people. As our Imam is truthful, our Prophet is truthful, our way of life should be truthful, as our religion is religion of truth. Assalamu alaikum. जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं हज ज़ारा बोल रही हूँ और मेरा ये सवाल है कि हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हालत रुकू में जो ज़कात दी थी, क्या वो 14 ज़ुल्हज को ही दी थी? वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। हदिया ज़ारा ने हमें कॉल की है। अल्लाह ताला सलामत रखे आपको हदिया ज़ारा। अल्लाह ताला मीसम को भी जिंदा और सलामत रखे। और हमें जो कॉल की नूर ने, मोहम्मद इकबाल साहब ने, एक और मोमिन ने, अल्लाह ताला इन कॉलर्स को और वाच करने वाले व्यूअर्स को जिंदा और सलामत रखे। अभी मैं जवाब अर्ज करता हूँ। बिल्कुल ये दुरुस्त है कि इत्तेफाक से जो यही ईद और मौला अली अलैहिस्सलाम की जो अंगूठी के बाद सनद विलायत का मिलना है, ये एक ही दिन वाक़ हुआ। अजीब इत्तेफाक ये है कि ये बिल्कुल गोया कल का दिन 2 ईदों का दिन है। एक ये कि 24 को मुबाला हुआ और दूसरा ये कि मौला अली को इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुना सलाता व युतूना ज़काता व हुम राकिऊन के जरिए सनद मिली। जो अंगूठी आपने दी थी फ़कीर को हालत रुकू में, अल्लाह की ज़ात ने आपको सनद विलायत अता फरमाई। और इस महीने के एंड में ज़िलहज की 29 को सूरह मुबारक दहर नाजिल हुआ, जिसमें अहले बैत इस्मत व तहारत को जन्नत अलाट की गई। अल्लाह ताला उस अलाटमेंट में हमारा हिस्सा भी पंजतन पाक के सदके में रखे और ईद मुबाहला की खुशी से, विलायत अली की खुशी से, गदीर गुजरी हुई गदीर की खुशी से, ज़िलहज की खुशियों के सदके में अल्लाह ताला हमें जन्नत के काबिल बनाए। माशाअल्लाह यूथ की इंटरेस्ट बहुत ही अप्रिशिएटेड है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ यूथ का कि जो कॉल कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। एनकरेज करें और भी लोगों को कि चंद मिनट और बाकी है, बहुत तवील सिलसिला नहीं होगा, क्योंकि आज हमें इमाम अली सेंटर में भी जाना है, क्वींस बुलवार्ड में जो ईरानियों का सेंटर है। वहाँ हमारे दोस्त आगा इस्लामी ने हमें बुलाया है फ़ारसी में गुफ्तगू करने के लिए। और फिर आज रात को हमें शाह नजफ़ में भी 8:30 बजे उर्दू में तकरीर करनी है। तो हम यहाँ से बस चंद ही मिनट में निकलने वाले हैं। आप हजरात ख़वातीन अगर 2 कॉल्स और करना चाहें तो गोया 5 मिनट और हम आपकी कॉल्स लेंगे, फिर हम समअप करेंगे। नसारा नजरान के मुकाबिल पर
हुजूर के ख़ानदान का निकलना और कुरान का हुजूर के ख़ानदान को सादिकीन कहना, सच्चा कहना, हुजूर के ख़ानदान के मुखालिफों को झूठा कहना, हुजूर के ख़ानदान के मुखालिफों को लानतुल्लाह अलैहिम कहना, हुजूर के ख़ानदान के किस्से को किस्सा हक कहना, इस बात की दलील है कि अगर हम हक का ज़्यादा चाहते हैं तो वो पंजतन पाक से मिलेगा। रहमतुल्लाह अलैहिम ढूंढना चाहते हैं, पंजतन पाक से मिलेंगे। रिजवान खुदा ढूंढना चाहते हैं, पंजतन पाक से मिलेगी। सच ढूंढना चाहते हैं, पंजतन पाक के रास्ते से मिलेगा। एक कॉल और ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Walaikum assalam. I have a question. You know how Eid al-Mubarak, like the Muslims acknowledge it, like the Shia Muslims? Do the Christians acknowledge Eid al-Mubarak? Like, do they celebrate it? Like, very good question. Who's this? this is Noor again. Noor again. Okay. Thank you, Noor. I'll answer right now. Noor is asking, are the Ahl Sunnat brothers and sisters, they do celebrate this Eid of Mubahala or not? The answer is, our Sunni brothers, they should celebrate, but unfortunately, they are not. They are not celebrating. This is not Eid of Shia. This is Eid of Prophet, Eid of family of Prophet, Eid of truthful people. But unfortunately, our Sunni brothers and sisters, they are not celebrating. I think we have to request them, urge them to celebrate this Eid as well. Thank you, Noor, for your nice question. मोहतरम नाज़रीन हज़रात, हमारा अलमहदी टीवी से सिरात मुस्तकीम का 35वां प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होने को है, क्योंकि आज हमें असल में दूर जाना है। 2 प्रोग्राम्स हैं और कल फिर हमारा बड़ा हेक्टिक डे है। याद रखिए तमाम व्यूअर्स, कल सुबह के वक्त इंशाअल्लाह फजर की नमाज के बाद दरस कुरान हो रहा है और ये अयाम मुहर्रम से पहले का आखिरी दरस कुरान है। अब इंशाअल्लाह 10 नवंबर के बाद फिर दरस कुरान हौज़े की क्लासेस शुरू होंगी। एक कॉल में और ले लेता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाफिज मुबशर नज़ीर अर्ज कर रहा हूँ ब्रुकलिन न्यूयॉर्क से। मौलाना साहब जी, कैसे खैरियत से? जी, अल्लाह का शुक्र है। मेरा जनाब ईद मुबाहिला से मुतल्लिक सवाल ये है कि मुबाहिला पर अल्लाह के रसूल मुबाहिसे के दौरान क्यों मजबूर हो गए थे, और दूसरा ये कि जो लोग आए थे उनके सरदार का क्या नाम था? ठीक है, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है हाफिज साहब, शुक्रिया आपने कॉल की। अल्लाह ताला हिफ्ज़ कुरान के सदक़े में आप पर और हम सब पर रहम नाज़िल फरमाए। एक तो बात यह है कि हुजूर मजबूर नहीं हुए थे, मजबूर नहीं थे। हुजूर को अल्लाह का हुक्म ही यही था कि इन्हीं को लेके जाना है, किसी और को लेके नहीं जाना, क्योंकि क्राइटेरिया बनाना था, जो इनका मुखालिफ होगा वो झूठा होगा, अल्लाह की लानत का मुस्तहिक होगा। यह क्राइटेरिया बनाना जरूरी था। दूसरी बात यह है कि मैं अभी अर्ज कर चुका हूं, उनके सरबराह का नाम था कुर्ज इब्ने अलकमा। ये जो हुजूर के पास डेलीगेशन आया था, कुर्ज इब्ने अलकमा की सरबराही में आया था, जो इनका प्रीस था, और दूसरे प्रीस का नाम था अबू हारिसा। तो इनकी सरबराही में ये डेलीगेशन आया था। 3 लोगों ने हुजूर से डायलॉग किए थे। डेलीगेशन के अफराद अलबत्ता ज्यादा थे, बहुत ज्यादा थे, कम नहीं थे। इसी तरह मुबाहला में आने वाले भी बहुत ज्यादा थे। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, हमारा प्रोग्राम आज सिरात मुस्तकीम नंबर 35 मुबाहला के सिलसिले में है। कल रोजा भी रखिएगा। कल हमारी हाजिरी है बाबुल इल्म मस्जिद में, डेलवेयर में। दोपहर को हम जोहर की नमाज वहां पढ़ाएंगे। कल हमने यूथ के लिए वहां, जो लोग अराउंड मैरीलैंड, पेंसिल्वेनिया, न्यू जर्सी, डेलवेयर में रहते हैं, वो कल जरूर 12:30 पहुंचे, क्योंकि बच्चों के लिए 1 घंटे का हमने प्रोग्राम रखा है, जो रिकॉर्ड भी होगा इंशाअल्लाह। और वो हमने रखा है कि हमारे चिल्ड्रन, हाउ आवर चिल्ड्रन कैन सर्वाइव इन दिस वर्स्ट सोसाइटी। इस मुल्क में हमारे बच्चे कैसे अपने आप को बचाएं, ये कल हमारा एक प्रोग्राम है, बहुत जबरदस्त। और ये प्रोग्राम उनके मुकाबिल पे है कि जो मुर्तद होने के बाद हमें ईमेलें भेज रहे हैं कि हम मुर्तद हो गए हैं, उनके मुकाबिल पे हम चाहते हैं कि जबरदस्त हम प्रोग्राम करें और हमारे बच्चों की स्ट्रेंथ बताएं
کہ آپ اگر مرتد ہو گئے, آپ اگر ایک ہیں, ہمارے 1000 بچے انشاءاللہ جادہ حق پہ ہیں, اس برے ماحول کے اندر بھی وہ شریف ہیں, نیک ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو. السلام علیکم. علیکم السلام. مولانا آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ. کیسی ہے بیٹی؟ میں ٹھیک ہوں. کون بول رہی ہے؟ میں سمن بول رہی ہوں ٹیکساس سے. سمن. جی سمن, اچھا, کیسی ہیں؟ خیریت سے؟ جی. کیا کہنا چاہو گی؟ میں کہنا چاہوں گی کہ جس جگہ پہ موبائل ہوا تھا, مسجد موبائل, اس کا آج کل نام کیا ہے؟ بہت اچھے, ویری گڈ. سمن ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا ہے, اور میں تمام بھائی بہنوں کو کہوں گا آپ بھی اپنے بچوں کو انکریج کریں. بلا وجہ وہ فضولیات میں انٹرنیٹ پہ بیٹھ کر فضول ادھر ادھر کی باتیں دیکھ رہے ہیں, اور اسی وجہ سے وہ آپ کے ڈس اوبیڈینٹ بھی ہو رہے ہیں. ان کو انکریج کریں, المہدی ٹی وی کے وہ پارٹ بنے, ایسے سوالات کریں. اپنے اپنے اسکولز میں جائیں, سنڈے اسکول, سیٹرڈے اسکول, سیشنز میں جائیں. محرم آ رہا ہے, محرم میں سب بچوں کو انکریج کریں, نوٹس بنائیں. حوض علمیہ کی کلاس ہماری چل رہی ہے, اس پہ آن لائن بھی آئیں. دیکھیے سمن نے کتنا بیوٹیفل کوشچن کیا ہے کہ یہ بتائیں کہ مسجد یہ جو مباہلہ کی جگہ تھی, اس کا آج کل نام کیا ہے؟ تو سن لیجئے, اس کا آج کل نام ہے مسجد الاجابہ. اگرچہ اس کو پچھلے سالوں میں مسجد معاویہ بھی کہا جاتا رہا, ہمارے پروٹیسٹ کرنے سے اب مسجد معاویہ نہیں بلکہ مسجد اجابہ کہا جا رہا ہے. بہت شکریہ. صراط مستقیم کے 35ویں پروگرام میں آپ کو ایک بری خبر بھی دیں گے اور آپ سے دعا بھی چاہتے ہیں. آیت اللہ نمر النمر, میرے کلاس فیلو جو حوض علمیہ کے پڑھے ہوئے ہیں, 50s میں ہیں, لیٹ 50s میں, ان کی سزائے موت کو کنفرم کر دیا گیا ہے, ڈیتھ سینٹینس کو. ان کی آخری اپیل بھی مسترد ہو گئی ہے, کسی بھی وقت ان کا سر قلم کر دیا جائے گا. تو تمام بھائی بہنوں سے گزارش کروں گا, اس شریف زادے کے لیے, اس نیک عالم اور مجتہد کے لیے آپ دعا کیجئے. اللہ تعالی محمد و آل محمد کے صدقے میں, اس عید مبارکہ کے صدقے میں ہمارے اس مجتہد کی جان خلاصی فرمائے, اور سعودی احمقوں کو عقل اور ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا کرے. اس طرح ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کوئٹہ کے اندر بھی آپ نے دیکھا لاسٹ ویک پھر دوبارہ سے دہشت گردی شروع ہو گئی. کراچی میں ڈیلی 5 سے 7 مومنین شہید ہو رہے ہیں. پنجاب میں بھی کہیں نہ کہیں شہادتیں ہو رہی ہیں, اور ابھی طالبان نے اور انجمن سپاہی صحابہ نے داعش کے ساتھ الحاق کا اعلان بھی کر دیا. تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ داعش کو, القاعدہ کو, آئسس کو, طالبان کو, لشکر جنگوی کو, سپاہی صحابہ کو برباد کرے, اور اللہ تعالیٰ شیعہ علی کی حفاظت فرمائے. شام میں, عراق میں آلموسٹ 500 کلومیٹر پر قبضہ ہے داعش کا, 500 کلومیٹر پر, اور اب تو یہ بغداد کے قریب پہنچ گئے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور آپ حضرات المہدی ٹی وی کے پارٹیسپینٹ بنے, $1 ڈے کی ممبرشپ لیں, تاکہ یہ جو ہمارا قرضہ ہے یہ ختم ہو, اور ہر مہینے ہمیں قرضہ نہ اٹھانا پڑے. اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ و سلامت رکھے. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کل 7 بجے مباہلہ کے جشن کے ساتھ حاضری ہوگی. آپ ٹھیک 7 بجے اپنے ٹی ویز کو آن کر لیجئے گا. 7 سے 9 بجے 2 گھنٹے کی ٹرانسمیشنز عید مباہلہ کے بارے میں المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک سے آئیں گی. اور محرم کے دوران انشاءاللہ ہماری ٹیم اللہ کے فضل و کرم سے چاند رات 24 سے لے کر 24 اکتوبر سے 5 نومبر سوئم تک 7:30 سے لے کے 9:30 تک 2 گھنٹے لائیو مجلس المہدی سینٹر سے دیں گے, اور 24 گھنٹے مجالس و نوحہ ماتم دکھائے جائیں گے. آپ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ تعاون کیجئے. اللہ کریم آپ سب کے ساتھ تعاون کرے. عید مباہلہ کی ڈھیر ساری مبارکباد کے ساتھ آپ کا خادم سخاوت حسین صدرالوی نیو یارک کے اسٹوڈیو سے اجازت لیتا ہے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ آج ان ٹرانسمیشنز کو پوری دنیا میں بھیجنے میں حافظ مبشر نذیر اور اختر عباس نے جو تعاون کیا ہے, اللہ ان دونوں کو سلامت رکھے. اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں جناب آغا برکت علی صاحب تشریف فرما ہے, ان کی توفیقات میں اللہ اضافہ فرمائے. زوار خبر عباس ہیں, اور کچھ اور بھی ہمارے بچے یہاں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو زندہ و سلامت رکھے. وما علینا الا البلاغ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ. عید مبارک.